بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پاسورڈ حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر ہوئے۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی، جبکہ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئی۔ ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا کہ پاکستانی صارفین فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کریں۔ ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ اور رینسم ویئر حملوں کا خطرہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کروڑوں صارفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پاسورڈ ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئی۔ پاکستانی صارفین فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کریں۔ ایڈوائزری ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ اور رینسم ویئر حملوں کا خطرہ ہے۔ سرکاری اداروں اور مالیاتی اکاؤنٹس بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایڈوائزری آپ کو بتا رہے ہیں کہ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پاسورڈ حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئی۔ ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستانی صارفین فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کریں۔ ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ اور رینسم ویئر حملوں کا خطرہ ہے۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پاسورڈ حساس معلومات چوری ہونے کا انکشاف۔ عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر ہوئے۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئیں۔ ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا کہ پاکستانی صارفین فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کریں۔ ڈیٹا لیک سے شناخت چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ اور رینسم ویئر حملوں کا خطرہ ہے۔ پہلے مزدور دہاڑی لگاتے ہیں، اب ڈاکٹرز بھی دہاڑی پر کام کریں گے۔ نواز شریف کارڈیالوجی ہسپتال سرگودا میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ دہاڑی پر رکھا جائے گا۔ 4 جون تک درخواستیں طلب۔ 200 بستروں پر مشتمل جدید ہسپتال کا OPD جولائی میں فعال ہوگا۔ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو بھی دہاڑی پر ڈاکٹر رکھ کر چلانے کا فیصلہ۔ نئی کارڈک ہسپتالوں کی بیشتر سروسز بھی ٹھیکے پر ہوں گی۔ پہلے مزدور دہاڑی لگاتے ہیں، اب ڈاکٹرز بھی دہاڑی پر کام کریں گے۔ نواز شریف کارڈیالوجی ہسپتال سرگودا میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ دہاڑی پر رکھا جائے گا۔ 4 جون تک درخواستیں طلب۔ 200 بیڈز پر مشتمل جدید ہسپتال کا OPD جولائی میں فعال ہوگا۔ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو بھی دہاڑی پر ڈاکٹر رکھ کر چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بلٹن میں اب بات کریں گے موسم کی۔ جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو کی لہر میں معمولی کمی۔ رجحان خانیوال کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ لودھنا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ گڑھا موڑ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ وہاڑی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ رجحان خانیوال کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لودھنا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گڑھا موڑ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وہاڑی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لودھرا میں 2 روز قبل آندھی سے گرنے والے پولز اور ٹوٹے تاروں کی مرمت جاری۔ سلور لائن فیڈر اور سٹی 1 فیڈر کی بجلی منقطع۔ ایکسین قمر زمان کا کہنا تھا کہ گرنے والے 3 پولز دوبارہ کھڑے کر دیے گئے۔ مین 11 کے بھی تار بھی لگائے جا رہے ہیں۔ آج فیڈرز کی بجلی بحال کر دی جائے گی۔ آج فیڈرز کی بجلی بحال کر دی جائے گی۔ 2 روز قبل آندھی سے گرنے والے پولز اور ٹوٹے تاروں کی مرمت جاری ہے۔ سلور لائن فیڈر اور سٹی 1 فیڈر کی بجلی منقطع ہو گئی۔ گرنے والے 3 پولز دوبارہ کھڑے کر دیے گئے ہیں۔
मेन 11 kV तार भी लगाए जा रहे हैं, जबकि एक्सियन के मुताबिक 8 फीडर की बिजली बहाल कर दी जाएगी। लोधरा में इंसदाद तजावुजात मुहिम में इंतजामिया ने मेन बाजार में दुकानों के आगे लगे शेड्स भी हटा दिए। शदीद गर्मी में साया ना होने से दुकानदार और सारिफीन दोनों शदीद परेशानी का शिकार हैं। लोधरा मेन बाजार में कमोबेश 1500 दुकानदार और सैकड़ों स्टॉल्स मालकान अपना रोजगार गंवा रहे हैं। तजावजात हटाने की आड़ में दुकानों और स्टॉल्स पर लगे शेड्स और कपड़े हटाने से शदीद गर्मी और तपिश से कारोबार ठप हो गया। स्टॉल्स मालकान कहते हैं शदीद गर्मी में अव्वल तो सार्फिन घरों से ही नहीं निकल रहे और अगर बाजार आ भी जाए तो धूप उन्हें दुकानों तक पहुँचने नहीं देती। मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि पहले नंबर पे तो हमें यहाँ छपरा 4 फुट लगाने की इजाजत दी जाए, ताकि जो कस्टमर होता है छांव के नीचे आराम से खड़े होकर खरीदारी कर सके, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो काफी अक्सर ये हज़रात हमारे सामने वाक़या हुआ है, औरतें मर्द बेहोश होकर नीचे गिर गए, हमारे सामने वाक़या हुआ काफी है। मेरी गुजारिश है कि सिर्फ हमें 4 फुट पे छपरा लगाने की इजाजत है। आज 3 महीने हो गए हम गर्मी में बैठे। दुकानदारों के साथ साथ बाजार में रेहड़ीबान भी गर्मी में हाय हाय करते नजर आ रहे हैं। उन्हें भी यही शिकायत है कि इंतजामिया उन्हें गर्मी में मारना चाहती है। जब से ये शेडें हटी है ना बाजार की, आप यकीन जानो कारोबार करना बिल्कुल दुश्वार हो गया। कस्टमर आता नहीं है, कस्टमर आ भी जाता है तो उसको सवारी खड़ाने की जगह नहीं है। सवारी खड़ाते हैं 5 मिनट के अंदर गाड़ी ऐसे हो जाती है जैसे कोई आग बरसा रही है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम गर्मी में बहुत तंग है, छोटे दुकानदार है, रेडी लगाते हैं, धूप में 40-45 दर्जा हरारत है। मेहरबानी हमें कपड़ा बांधने की इजाजत दी जाए ताकि हमारे बच्चों की रोजी कर सके। दुकानदारों का कहना है कि वजीर आला ने इंसदाद तजावजात मुहिम के तहत सड़कें कुशादा करने का कहा, मगर जिले इंतजामिया आसमान साफ करने में मसरूफ है। साय के लिए शेड या कपड़ा हटाने से तजावजात का खात्मा हो या न हो, दुकानदारी बर्बाद होकर रह गई है। बहुत बड़ी ज्यादती की हुई है इंतजामिया ने। पूरा बाजार में आप देख लें कि कितनी शिद्दत है गर्मी की, लेकिन यहाँ बैठने के लिए कोई सायेदार कोई चीज़ नहीं है। एक तो दुकानदार खुद नहीं बैठ सकता, कस्टमर कहाँ से आएगा। जो चीज़ें पड़ी हैं वो गल सड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, सब कुछ ख़राब हो रहा है। बहुत जुल्म है ये। तजावजात के खिलाफ मुहिम अपनी जगह, लेकिन बाजार में गर्मी को मद्देनजर रखते हुए जिले इंतजामिया दुकानदारों और स्टॉल्स के लिए साय का इंतजाम भी मुमकिन बनाए ताकि दुकानदार सुकून से कारोबार और सार्फिन अच्छे माहौल में खरीदारी कर सकें। कैमरामैन सिजाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। शहर हालिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुदसाख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद है। जिले इंतजामिया खुदसाख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान जमीर। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क। जिले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी निर्खनामा में प्याज 26, आलू 52 और टमाटर 34 रुपए फी किलो है। मार्केट में प्याज 50, आलू 60 और टमाटर 45 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 575 और लहसुन 160 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खनामा में शिमला मिर्च 86, बंद गोभी 22, सब्ज धनिया 70 और खीरे 44 रुपए फी किलो मुकर्रर। देसी लीमू सरकारी निर्ख 498 की बजाय 800 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अरवी 220, भिंडी 100, घिया तोरी 40 रुपए फी किलो मुकर्रर है। फल भी आम चेरियों की दस्तरस से बाहर। चेरी सरकारी निर्ख 500 की बजाय 800 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खनामा में सेब 350, पपीता 300, खरबूजा 150 और तरबूज 50 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट में चीकू 260, लोकाट 180 और आम सिंडरी 220, सरोली 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी निर्खनामा में आड़ू 200, फालसा 210 और खुबानी 220 रुपए फी किलो, जबकि केले 150 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। इंतजामिया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करके खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरियों को सस्ते दामों मयारी सब्जियां और फल दस्तयाब हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। शदीद गर्म मौसम में अंडों की बढ़ती कीमत ने सबको हैरान कर दिया। बहावलपुर में फी दर्जन अंडों की कीमत 360 रुपए तक पहुंच गई। शहरियां दुहाई देने लगे। बहावलपुर में अंडों की कीमत ने सर्दियों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। शदीद गर्म मौसम में अंडों की कीमत कम होने की बजाय बढ़ने लगी। शहर में फी दर्जन अंडों के नर्क 360 रुपए तक पहुंच गए। 2 हफ्ते में सरकारी रेट भी 240 से बढ़कर 300 रुपए फी दर्जन हो गया। सर्दियों में फी दर्जन अंडे ज्यादा से ज्यादा 340 रुपए तक फरोख्त हुए। शहरी कहते हैं महंगाई माफिया दोनों हाथों से लूट रहा है। अंडे जो है ना पहले चल रहे थे तकरीबन
20 रुपए का 25 रुपए का चल रहा था, अब यकदम ही गर्मी भी ज़्यादा हो गई है और अंडे भी है ना 30 रुपए से ज़्यादा हो गए हैं। अब 30 रुपए से ज़्यादा अंडा मिल रहा है। मेहरबानी करें, अब हुकूमत पंजाब से हमारी ये दरख्वास्त है कि अंडा जो है ना मेहरबानी करके सस्ता करें। गर्मी में तो वैसे ही अंडे सस्ते होने चाहिए, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा जो है ना सर्दी में तो समझ आती है रेट का ना अंडे की, वो 40 रुपये भी बेचते रहे हैं, 28 रुपये का भी बिकता रहा है, 30 का भी बिकता रहा है, और गर्मी में तो नहीं खाए जाते ना इतने। भाई बात ये अंडा महंगा 30 रुपए का हम नहीं खरीद सकते, और ये अपने क्या नाम है महंगाई इतनी हद से ज़्यादा हुई पड़ी, अंडे पे अंडा सस्ता करा जाए। शहर में अंडों का सरकारी रेट मजाक बन गया। दुकानदारों का कहना था कि अंडों का फार्मर ब्लैकमेलिंग के जरिए महंगे अंडे फरोख्त करवा रहा है। हुकूमत दुकानदारों की बजाय फार्मर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करे। बहावलपुर में अंडों के फार्मर माफिया का रूप धार चुके हैं। और ये बाकी सही इनकी रिपोर्ट है, अंडे का रेट गवर्नमेंट का 300 रुपये है, और ये उससे ऊपर अंडा सर्दियों से भी महंगा अंडा बिक रहा है। पिस्ता छोटा दुकानदार है, जुर्माना छोटे दुकानदार को लगता है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनके फार्म हैं, फार्मर हैं, उनको कोई हाथ ना डालता है, ना उनसे कोई पूछता है। स्कूल बंद हो जाएंगे, छोटे बच्चे स्टूडेंट अंडा खाना बंद कर देंगे, उससे शायद कोई फर्क पड़ जाए, शायद अंडे का रेट कोई नीचे आ जाए, अदरवाइज मुश्किल है। सर्दियों से भी ज़्यादा महंगा हो गया अंडा, और अंडा क्या नाम है 20 रुपये से 30 रुपये कर दिया दोबारा इन्होंने, 1 महीना हो गया, और ब्लैक में दे रहे हैं अंडा। और कभी कहते हैं जी 30 रुपये का बेचो जी, 29 रुपये का देंगे, कभी कहते हैं 27 रुपये का देंगे, 28 रुपये का बेचो। और रेट लिस्ट पे 300 रुपये रेट लिस्ट आ रही है गवर्नमेंट की, और जो ब्लैक मेली पे मिल रहे हैं रेट, अंडे का रेट हाई करके दे रहे हैं। और ये गर्मी में तो सस्ता होना चाहिए अंडा, उल्टा महंगा हो गया इतना। मार्केट जराये का कहना है कि स्कूलों में छुट्टियों से पहले महंगाई माफिया अंडों की कीमत बढ़ाकर मसनूई बुरहान पैदा कर रहा है। स्कूलों में छुट्टियां होने के बाद तलब में कमी पर अंडों की कीमत भी कम होने की तवक्को है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं कि आइंदा वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सदर मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि पिछले बजट में भी हुकूमत ने ताजों पर टैक्सेस की भरमार की थी। उम्मीद करते हैं कि इस बार ताजे दोस्त बजट पेश किया जाएगा। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, साल 2025 और 26 का आइंदा माली बजट जो है वो 10 जून को पेश किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी ताजिर जो है वो आने वाले बजट पर और जो है वो बजट की जो तजावीज़ हैं और माशी जो पॉलिसियाँ हैं उन पर जो है वो नज़रें जमाए बैठे हैं। इस वक्त जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर हमारे हमने मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि ताजरों की इस दफ़ा के बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या तवक्कुआत हैं और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शेख साहब क्या कहेंगे, इस दफ़ा जो है वो बजट 10 जून को पेश किया जाएगा, ताजरों की क्या उम्मीदें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा मैं जो थोड़ी सी कड़वी बात करता हूँ, ताजरों की उम्मीदें होती हैं पर उसको बर्फ़ पे लगा दिया जाता है। हमेशा बजट हमें ये कह के दिया जाता है कि बजट जो है ताजर दोस्त अवाम दोस्त है, पर वो बाद में अवाम दुश्मन बन जाता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मुल्क में जो मुल्क है हमारा ये ज़राअत पे है। ज़राअत के मामला ठीक नहीं होंगे तो हमारे कारोबार आप बाज़ार में चेक कर सकते हैं, कारोबार नहीं है। हमें सिर्फ टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन, प्याज ये सस्ता नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो किसान है ना उसको खाद सस्ती दें, डीजल सस्ता दें, पेट्रोल सस्ता दें, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम हो, रेट कम हो, सब्जियां मंडी में जाएं तो कम जो बिक रही हैं उनको कुछ बचे। जब तक उनको कुछ नहीं बचेगा तो कुछ हम अवाम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि बजट को अवाम दोस्त, गरीब दोस्त बनाया जाए, ऐसा ना करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बजट से पहले जो ताजर नुमाइंदगान हैं असल, ये ज़रा असल पे मैंने जोर इसलिए दिया कि जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे मीटिंग्स कर ली जाए, ताकि बजट के बाद जो हम रोड ब्लॉक करना, धरने देना, ये मामलात करना ये ना हो। हम नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट को कहीं परेशान करें, पर गवर्नमेंट का भी हक है कि ताजर नुमाइंदों से हमसे टैक्स ले रहे हैं तो हमसे मीटिंग, हमारे दोस्तों से, हमारे जो बड़े हैं उनसे मीटिंग करना ज़रूरी है। अगर मीटिंग नहीं करेंगे तो ये मामलात उलझेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो मिनी बजट है ना, मिनी बजट नहीं देना चाहिए। आप बजट एक दफ़ा दे दें, ताजर दोस्त दे दें, अवाम दोस्त दे दें, दुश्मन दे दें, एक ही दफ़ा बजट दे दें। ये नहीं कि आपने हमें आज बजट सुना दिया, 1 महीने बाद एक नया बजट आ गया, फिर अगले 1 महीने फिर एक नया बजट आ गया, ये काबिल कबूल नहीं है। तो मेरी यही है
कि इन चीज़ों पे देखा जाए। मैं एक चीज़ पे और भी डिस्कस कर लूँ कि पिछले साल गंदम का रेट था 3,3200 रुपये, रोटी थी 15 रुपये की। अब गंदम का रेट है 2200, 2100, 2200 और आटे का रेट है 2400, 2500 और रोटी फिर 15 रुपये की बिक रही है। मैदे का रेट था 8,000 रुपये, 7,000 रुपये। नान था 30 रुपये का, ठीक है, और नान आज भी 30 रुपये का है। मैदे का रेट 4,000 रुपये, 3,800 रुपये। मुर्गी पे भी मैं जाऊँ तो इसे इनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो सारों को दें। ये नहीं है कि मुर्गी वाले को ज़िबा कर दें, टमाटर वाले को जुर्माना कर दें या उसको जुर्माना कर दें। मुर्गी का रेट है 600 रुपये, कढ़ाई का रेट है 2200 रुपये, कढ़ाई का रेट है 2200 रुपये। तो ये कौन सा अवाम दोस्त है? कहाँ है मजिस्ट्रेट हमारे और कहाँ ये मामला? इनको देखें। और सबसे बड़ी तजवीज़ मेरी ये है कि इनको बाकायदा बिठा लिया जाए कि रोटी का वज़न इतना ही ग्राम का इतने हिसाब से इतना बनता है। ये नहीं है कि मुसल्लत कर देंगे यार 10 रुपये रेट है। नहीं, आप रोटी को बनवा लें, चेक कर लें कि 1 किलो में कितनी बन रही है, कितने इसके एक्सपेंसिव हैं, उसके हिसाब से उसको रेट निकाल दें। अब गवर्नमेंट ने 1300 रुपये बकरे का रेट दिया हुआ है, वो कहाँ से मिलेगा? 800 रुपये बड़ा गोश्त दिया, वो कहाँ से मिलेगा? हमें वो जगह बता दें। या मैं तजवीज़ दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि हर शहर में 10-10 पॉइंट बना दें गवर्नमेंट अपने, ताकि हम भी अपने दुकानदार से कहें यार जब ये 800 दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? रेट देना कोई मसला नहीं है, उस पे उसके अमल दरामद कराना भी हक बनता है कि जब हम नहीं दे सकते, हमने कह दिया कसाई को, वो कसाई हमें गोश्त थोड़ी देगा, पता नहीं क्या खिलाएगा हमें, बकरे की जगह पता नहीं क्या खिलाएगा हमें। तो बात करने के लिए हमारे साथ और भी ताजिर मौजूद हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? पिछले साल बजट में आवाम पर जो है ताजिरों पर टैक्सों की भरमार की गई थी, इस दफ़ा क्या तवक्कुआत हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल ताजिरों को बताया जाता है कि ये ताजिर दोस्त बजट आ रहा है, मगर हम अपनी ज़िंदगी में यही देखते आ रहे हैं कि बजट के बाद मिनी बजट आ जाता है। गवर्नमेंट को ये फराज रमजान अपडेट करने का शुक्रिया। मियांवाली में बकरा ईद के करीब आते ही कांगू वायरस के खतरात भी बढ़ गए। मंडी मवेशियां में जानवर खरीदते वक्त शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वेटनरी डॉक्टर तैमूर आलम खान ने बताया कि जानवरों को हाथ लगाते वक्त हाथों पर दस्ताना पहने या शॉपर चढ़ा लें। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। ये है कि इंसान को अपनी भी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। आपको ये तो पता होगा कि जो टिक्स जिनको हम चिचियाँ कहते हैं, इनकी कुछ किस्में जिसमें हार्ट टिक्स आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बन सकती हैं, क्योंकि वो इंसानों में ऐसी बीमारियां जिसको हम कहते हैं कि जूनोटिक डिजीज, जो कि जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है हिमिलियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। तो जो क्रिंजियन कॉन्गो जो ये फीवर है, तो ये असल में ये है कि ये ऐसी टिक से होता है, जो कि ऐसे वायरस से होता है जो कि जानवरों में एज ए कैरियर जानवर इसके होते हैं, इनके उनमें ये नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर वही वायरस इंसानों में पहुंच जाए तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी होती है कि जिसका इलाज बहुत आम तरीके से मुमकिन नहीं है। और इसकी एहतियात ये करनी चाहिए कि एक तो ये है कि हम आपको बताते चलें कि आपको इतना बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी जानवर आ रहे हैं, हमारी चेक पोस्टें बाकायदा तौर पर बनी हुई है लाइव स्टॉक की, और ये डीपीओ साहब से हमें बात की है। हमारे कोई ऐसा टिक्स का जानवर आ जाता है तो पुलिस भी हमारी हेल्प आउट कर रही है कि उस जानवर को हम वहीं पर पाबंद कर दें। और दूसरा, हमारे वहाँ पे जो लाइव स्टॉक के जो वर्कर्स हैं, हमारे पैरावेट्स हैं, वो वहाँ पे उनको बाकायदा तौर पे स्प्रे कर रहे हैं। इस वक्त कैटल मार्केट में, कैटल मंडी में जो इनके इंचार्ज हैं, वो भी इनको बाकायदा तौर पे स्प्रे करा रहे हैं। अगर कोई जानवर पे टिक्स है तो हमारी टीमें और कैटल मंडी की टीम सारी मिल करके उसको हम डिसइंफेक्ट करा रहे हैं। लेकिन इंसान को खुद भी एहतियात करनी चाहिए, और हमें बिला ज़रूरत मंडी में कुछ लोग चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ कि वो खाम खाबे वहाँ पे जाके आप मंडी के चक्कर ना लगाएं, बल्कि आप अगर जो जानवर लेना है जिस बंदे ने, और जो जानवर लेना है बस उसी को चेक करें। अगर हो सके तो आप अपने मास्क और ग्लव यूज कर लें, नहीं होता तो जानवर को अगर आपने चेक करना है तो घर पे शॉपर चढ़ा लें, और कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहन, बहुत रंगदार कपड़े, गहरे रंग के कपड़े पहन के ना जाए, हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि कोई टिक्स आपके ऊपर चढ़े तो उसका पता चल जाए। सर को ढांप के रखें ताकि आपके हेयर में भी कोई ऐसी चीज ना चल जाए। बहरहाल एहतियात करें, खाम खा जानवरों में फिरने से और हाथ लगाने से एहतियात करें, और इंशाअल्लाह